Welcome students. This is the part second of the first chapter of your statistics book. In this I am going to teach you what is scope of statistics. Scope of statistics means we will understand what is the nature of statistics, what is the subject matter of statistics, and what are the limitations of statistics. First I am going to start with nature of statistics. स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है? स्टैटिस्टिक्स is both a science as well as an art. That means जो स्टैटिस्टिक्स है वो दोनों ही है, साइंस भी है और आर्ट भी है. As a science, because statistics studies numerical data in a scientific manner and in a very systematic manner. So, because statistics studies data or that is the quantitative data, it studies the quantitative data in a very systematic, in a scientific and systematic manner. That is why statistics is a science. But why statistics is an art? इसको आर्ट क्यों बोलते हैं? Because statistics by studying all the quantitative data in a scientific and systematic manner, we analyze the real problem of the economy. That is, by using statistical data, we are able to analyze and understand the real life problem better than anything. Like, for example, problem of unemployment. हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, but by studying these quantitative data thoroughly, we understand that what is the magnitude of the unemployment problem in the economy. So हमको ये समझ में आता है कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, whether it is 20% और it is 30%. ये हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमने कैसे एनालाइज किया? बाय एनालाइजिंग और बाय स्टडिंग द क्वांटिटेटिव डाटा इन अ scientific and systematic manner. So, what is the nature of statistics? Statistics is both a science as well as an art. Why it is science? Because we are studying the quantitative data in a very systematic manner. And why it is arts? Because we are studying these quantitative data and we are analyzing the problem of an Indian economy, and we get to know what is the magnitude of the problem of the Indian economy, and we are concluding that what are the reasons and what is the real problem in the Indian economy. So this is the nature of the statistics. Next is subject matter of statistics. Subject matter of statistics में दो चीज़ें हम बेसिकली डिटेल में पढ़ते हैं. पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड नेक्स्ट है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. What is descriptive statistics? In descriptive statistics, it refers to those methods which are used for collection, presentation as well as analysis of the data. So, in this, statistics refers to that is descriptive statistics refers to those methods which are used for collection of data, presentation of data, and
एनालिसिस ऑफ डाटा। दैट मीन्स ऐसे सारे मेथड्स जिसके हम जो डाटा है, जो फैक्ट्स हैं, जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं और डाटा को एनालाइज करते हैं। दीज आर कम अंडर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग द एवरेज हाइट ऑफ द सेकेंडरी स्टूडेंट इन योर स्कूल, दैट मीन्स हम एवरेज हाइट है हमारे स्कूल में जो सेकेंडरी स्टूडेंट है उनकी एवरेज हाइट को हम जो काउंट करते हैं, दैट इज कम्स अंडर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और अगर हम ये काउंट करते हैं कि जो साइंस और मैथ्स में बच्चों के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द साइंस एंड मैथ्स मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, सो दैट इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एंड वी आर also interlinking the relationship between the two datas, so that is the descriptive statistics. Then what is inferential statistics? Inferential statistics क्या होता है? It is refers to all such methods by which conclusions are drawn relating to universe or population on the basis of given sample. Then what is the meaning of that? Let's say for example, first we have to understand what is universe or population. Statistics में universe और population का थोड़ा सा जो meaning है वो different है। जैसे कि let's say अगर आप मान लीजिए हमारे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं और 1000 स्टूडेंट्स के डाटा को आप काउंट कर रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स लेट्स से हम लोग बच्चों के जो SST में जो मार्क्स हैं सारे 1000 बच्चों के, उनके हम काउंट कर रहे हैं एंड देन हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं। सो जो टोटल जो स्ट्रेंथ है दैट इज 1000, दैट इज अ पॉपुलेशन। सो स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन इज नथिंग बट द इट रेफर्स टू aggregate of all the items or units relating to your statistical studies. That means it is aggregate of all the units that you are using for your statistical studies. So that is the universe. So इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या कर रहे हैं, हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जैसे 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स में से हम कुछ सैंपल ले लेते हैं, लेट्स से 100 स्टूडेंट्स का। 100 स्टूडेंट्स के हम लोग एवरेज मार्क्स निकाल लेते हैं, एवरेज मार्क्स निकाल लेते हैं 100 स्टूडेंट के। हमने जब मार्क्स कैलकुलेट करे हमने मार्क्स निकाल लिए इनके। लेट्स से बच्चों की जो इकोनॉमिक्स में या फिर आप कह लीजिए SST के एग्जाम्पल ले रहे थे तो हम SST ले सकते हैं। SST में बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, लेट्स से 58 जो हैं एवरेज बच्चों के, जो 100 बच्चों का हमने एवरेज निकाला उसमें 58 मार्क्स हैं जो बच्चों के आए हैं SST में आउट ऑफ 100। तो हमने क्या किया, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि एक जो हमने सैम्पल लिया है, 100 स्टूडेंट्स इज अ सैम्पल एंड 1000 स्टूडेंट इज अ पॉपुलेशन। सो हमने जो 1000 स्टूडेंट में से जो हमने 100 स्टूडेंट का जो सैंपल लिया और उनके हमने जो SST के मार्क्स कैलकुलेट करे, एवरेज मार्क्स जो हमने निकाले 58 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। अब इस सैंपल के बेसिस पे जब हमने 1000 स्टूडेंट का भी एक कंक्लूजन निकाल दिया, दैट मीन्स इसके बेसिस पे हमने ये निकाल दिया कि हमारे स्कूल में जो 1000 बच्चे हैं उनमें एवरेज जो SST में मार्क्स हैं वो 58 आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आई एम ड्रॉइंग द कंक्लूजन बेस्ड ऑन दिस सैम्पल अबाउट द पॉपुलेशन। दैट मीन्स इट रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स विच आर यूज फॉर ड्रॉइंग द कंक्लूजन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सैम्पल। इस सैम्पल के बेसिस पे जब मैंने अपनी पॉपुलेशन का पूरा कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, दैट इज कम अंडर द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हम जो अपने सैंपल लेते हैं, सैंपल का हम एक जो भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट करते हैं और उस सैंपल के कंक्लूजन से जब हम पूरे अपने पॉपुलेशन का कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज कम अंडर द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट जो लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की, दैट इज इट स्टडीज द न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। दैट मीन्स इट स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली दोज
facts and figures that can be expressed in numerical terms. That means it does not study the quantitative phenomena, qualitative phenomena. क्वालिटेटिव फिनोमिना को ये स्टडी नहीं करता है. क्वालिटेटिव फिनोमिना दैट मीन्स जैसे कि ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ. जो आपके जो क्वालिटेटिव जो फिनोमिना है उसको ये स्टडी नहीं करता है. इट ओनली स्टडीज अबाउट द क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड फिगर्स. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सेकेंड जो लिमिटेशन है वो है इट स्टडीज द एग्रीगेट्स ओनली. दैट मीन्स जितने भी जो एग्रीगेट्स हैं ये उन्हीं को स्टडी करता है. अदरवाइज एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल किसी भी जो टीचर है उसकी जो सैलरी है वो 50,000 है. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 50,000 है. इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल डाटा ओनली. लेकिन इससे आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. सो इट डज नॉट कम अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये तो हमने क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करी है. बिकॉज यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर यूनिट की बात नहीं करता है. इट स्टडीज अबाउट द एग्रीगेट्स ओनली. दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ डाटा. सो अगर हम एक टीचर की स्टडी ना करके हम ये इन्फ्रेंस निकालते हैं कि जितने भी जो स्कूल टीचर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, दैट मीन्स हमारी कंट्री में जितने भी स्कूल टीचर्स हैं उनकी जो सैलरी है, उनकी जो मंथली सैलरी है वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मंथली सैलरी वो हम कैलकुलेट करते हैं ये कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए कि रीजनल डिफरेंसेस कितने हैं इनकी मंथली इनकम में, तो वो हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा स्टैटिस्टिक्स का. लेकिन अगर हम सिंगल या फिर पर्टिकुलर यूनिट को, पर्टिकुलर डाटा को स्टडी करते हैं तो ये हमारा फैक्ट तो है लेकिन इट डज नॉट कम अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. बट अगर हम सभी को एग्रीगेट्स को एक साथ देखते हैं तो इट कम्स अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. थर्ड लिमिटेशन है homogeneity of data and essential requirement. That means for study of statistics we need homogeneous data because data should be in uniform quality because diverse quality or diverse kind of data cannot be compared. अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन और उसी के साथ हमने ले लिया प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ. अब ये जो डाटा है ये डाइवर्स क्वालिटी का है, डाइवर्स काइंड का है और इस डाटा को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज जो फूड ग्रेन है उसको हम कैसे काउंट करते हैं, इट इज़ काउंटेड इन टर्न्स. दैट मीन्स उनको हम टर्न्स में मेजर करते हैं और जो क्लोथ है उसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं. तो दोनों ही ये क्या हो गया, डाइवर्स काइंड का जो डाटा है हो गया जिसमें कंपैरिजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. दैट इज़ वाई इन स्टैटिस्टिक्स होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज़ वेरी एसेंशियल फॉर कंपेयरिंग द डाटा. फोर्थ जो लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की, दैट द रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. दैट मीन्स जो भी रिजल्ट जो निकलता है, जो भी कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं वो जो कंक्लूजन है वो एवरेज के लिए ठीक है, रिजल्ट्स ट्रू है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो रिज़ल्ट हमेशा ही ट्रू हो. फॉर एग्जांपल अगर पर कैपिटा इनकम की हम बात करें, पर कैपिटा इनकम, लेट्स से हमने पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री में जो निकाली है वो है 50,000 पर पर्सन. दैट मीन्स हमारी कंट्री में हमने एवरेज निकाला है. हमने क्या किया है, हमारी कंट्री में एवरेज हमने निकाला है कि कितने लोग हैं और वो क्या क्या कितना अर्न कर रहे हैं, तो उसको हमने एवरेज कर दिया. एवरेज करने के बाद हमने निकाला पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया में वो 50,000 रुपीज़ है. तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है बिकॉज ये सिर्फ एवरेज शो कर रहा है. ये नहीं बता रहा है कि हमारी कंट्री में जो सभी लोग हैं क्या 50,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करते हैं, नहीं करते हैं. बिकॉज हमारी कंट्री में बहुत ही पुअर सेक्शन भी है, बहुत ही रिच सेक्शन भी है. जो पुअर सेक्शन है वो 50,000 पर मंथ अर्न नहीं करता है, लेकिन जो रिच सेक्शन है वो 50,000 पर मंथ से भी ज़्यादा अर्न करता है.
तो एक्चुअली में जो रिजल्ट्स जो निकलते हैं वो एवरेज के लिए सही रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं वो हर कंडीशन में सही भी हों और वो हर कंडीशन में ही एक ट्रू पिक्चर शो कर रहे हों. सो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट जो लिमिटेशन है, इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स. दैट मीन्स जो एक्सपर्ट हैं, दोज हु हैव नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, दे कैन ओनली यूज द स्टैटिस्टिक्स इन अ वेरी effective way. Otherwise, those who don't have any knowledge, special knowledge of statistical method, they cannot make a sensible use of statistics. That means उनको नहीं पता है कि किस तरह से यूज़ करना है, और इसीलिए जो उसका जो यूज़ है इट कैन बी ओनली बाय द एक्सपर्ट्स ओनली. देन नेक्स्ट है प्रोन टू मिसयूज़. समटाइम्स जो स्टैटिस्टिक्स है उसके डाटा को इस तरह से यूज़ किया जाता है टू सपोर्ट द प्री ड्रॉन कंक्लूजन. हमने पहले से ही कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू सपोर्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. So sometimes statistics can be misused by the people. So these are the limitations of the statistics. Our next topic is functions or the importance of statistics in economics. First importance is statistics in economics. It is the quantitative expression of economic problems. That means statistics is very useful to quantify the economic problems or to understand what is the magnitude of the problem. So जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स. सो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये जानने के लिए कि कितनी हद तक कितना मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम का, हमको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है इकोनॉमिक्स में. लेट्स से अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम लूँ, हम ये बोल रहे हैं इकॉनमी में इंडियन इकॉनमी हैव द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हमारी इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो है, लेकिन what is the magnitude of the problem? That means we are quantifying the economic problem. That means let's say 20% of the population of the country is unemployment. That means we get the magnitude of the problem कि किस हद तक हमारी इकोनॉमी में, कंट्री में जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो किस हद तक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम. और हमने ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाला? वी यूज स्टैटिस्टिकल मेथड to quantify the economic problem. So this is the very first importance or function of economic statistics in economics. Next है economics में जो statistics का use है, that is we get to know the intersectoral and intertemporal comparison in the economy. That means intersectoral, that means we get, for example, we are understanding the problem of unemployment, what is the magnitude of unemployment. लेकिन unemployment जो है different sectors में कैसा है, that means in this we comparison of problem across different sectors of the economy. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में क्या प्रॉब्लम है. तो इसका मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स के से हमको ये पता चलता है कि इंटर जो सेक्टर है, दैट मीन्स जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें जो प्रॉब्लम है वो किस हद तक है. क्या रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा है या फिर अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा है. सो इट फैसिलिटेट्स द इंटर सेक्टरल कंपैरिजन इन द इकोनॉमी. What is intertemporal comparison? Intertemporal comparison ये हमको शो करता है, it shows the change in the magnitude of the problem over time. That means it shows the magnitude of the problem over time. That means
लेट्स से डिकेड में हम कोई प्रॉब्लम को हम स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 2010 में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कितनी थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, जितने भी गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए, तो 2020 में प्रॉब्लम का क्या स्टेटस है. दैट मीन्स इन दिस वी आर कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो इन दिस वी आर कंपेयरिंग द sectors of the economy and what is the problem or what is the condition of economic problem in different sectors of the economy. In intertemporal comparison, we are comparing the magnitude of the problem over the period of time. That means what is the change in the problem in the economy. So statistics से हमको economics में ये समझ में आता है, it facilitates the comparison between different sectors and over the period of time about the different economic problem in the economy. Next है हमारा importance, working out cause and effect relationship. That means economics try to find out the cause and effect relationship between different sets of data. That means जो different set of data है उसमें किस चीज़ की वजह से किस चीज़ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है. Let's say for example कि इकोनॉमी में जो डिमांड है, डिमांड जो है इकोनॉमी में डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है हमारी इकोनॉमी में वो भी डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट. तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा को स्टडी करते हैं एंड दे आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सेट ऑफ डाटा. So it helps to diagnose the problem and it helps to suggest some effective remedies. जैसे कि एक तो हमको ये पता चला है कि हमारी इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट डाउन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जब डिक्रीज हो रहा है, इसका पहली बात तो हमको ये पता चला है कि डायग्नोस करना है प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम है डिक्रीज इन डिमांड. जैसे ही हमको पता चला कि इकोनॉमी में जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट फॉल हो रहा है, तो हम कुछ जो इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स ले जिसकी वजह से जो डिमांड है इकोनॉमी में वो इंक्रीज़ हो. अब डिमांड कैसे कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, गवर्नमेंट स्पेंड करे. दैट मीन्स गवर्नमेंट अगर स्पेंड करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो डिमांड करेंगे. सो अगर इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. सो स्टैटिस्टिक्स हमको कैसे हेल्प करता है. इन स्टैटिस्टिक्स जो इकोनॉमिस्ट होते हैं डिफरेंट सेट ऑफ डाटा को स्टडी करते हैं. दे वर्क आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा एंड दे गेट टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड आफ्टर स्टडिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम दे सजेस्ट सम मेजर्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है वो है statistics helps in construction of economic theories or economic models. So what is economic theories? It is established statistical relationship between the different sets of data. So अब जैसे ही जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा तो उसी की वजह से जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड ये क्या है? दिस इज द इकोनॉमिक थ्योरी. लॉ ऑफ डिमांड व्हाट इट स्टेट्स दैट इट सेज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप between price and demand. That means इसका क्या मतलब है, जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होगा, यू विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी. सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. अब जो ये इकोनॉमिक थ्योरी है या फिर जो इकोनॉमिक मॉडल है ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया? ये इकोनॉमिक्स ने कंस्ट्रक्ट किया बाय स्टडिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा. दैट मीन्स जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डाटा को स्टडी किया एंड दे फाइंड आउट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. सो दैट इज वाई दे कंस्ट्रक्ट द इकोनॉमिक थ्योरी और दिस इकोनॉमिक मॉडल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड.
So statistics helps in studying, or it helps in construction of different economic theories or economic models. So this is the importance of statistics in economics. Next है, it helps in economic forecasting. इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का क्या मतलब है? बिकॉज जो इकोनॉमिस्ट है वो डिफरेंट सेट ऑफ डाटा को स्टडी करते हैं और उसके थ्रू वो फोरकास्टिंग करते हैं कि व्हाट विल बी द जनरल ट्रेंड ऑफ दैट थिंग. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो जो इकोनॉमिक्स हैं, फॉर एग्जांपल जो प्राइस का जो बिहेवियर है, जो इकोनॉमिक्स का प्राइस बिहेवियर वो स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. तो ये हमको कैसे पता चला? स्टैटिस्टिकल डाटा से हमको पता चला कि जो प्राइस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है नियर फ्यूचर में भी इंक्रीज ही होगा, दैट मीन्स इन फ्यूचर में भी इंक्रीज ही होगा. अब फ्यूचर में अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इट हेल्प्स टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द सोल्यूशन, और इट हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग. हमको किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए जो प्राइस है वो डिक्रीज हो. तो इस तरह से जो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है इसमें भी जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. अब पॉलिसीज़ बनाने में भी जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. वो कैसे हेल्पफुल है? जैसे ही फॉर एग्जांपल जो हमने डाटा को स्टडी किया, जो इकोनॉमिक्स है जो स्टैटिस्टिकल डाटा को जब वो स्टडी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि जो अभी इकॉनमी में जैसे कि फॉर एग्जांपल टैक्सेस को इंक्रीज़ करना है या फिर टैक्सेस को डिक्रीज़ करना है. तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो कैसे बनाती है? जो इकोनॉमिक्स है वो डाटा को स्टडी करते हैं पहले, और वो ये बताते हैं कि जो लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं हमारी कंट्री में, उनकी टैक्स पेइंग कैपेसिटी कितनी है, टैक्स पेइंग कैपेसिटी कितनी है. अब मान लीजिए जो टैक्स पेइंग कैपेसिटी है लोगों की वो ज़्यादा है. अगर टैक्स पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी बनाएगी? दे विल इंक्रीज द टैक्स रेट इन द इकॉनमी. अगर स्टैटिस्टिकल डाटा से हमको ये पता चलता है कि जो टैक्स पेइंग कैपेसिटी है लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है इकॉनमी में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स रेट को डिक्रीज़ कर देगी. तो गवर्नमेंट जो है ये पॉलिसीज़ कैसे बना रही है? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी. दैट मीन्स जो जितने भी इकोनॉमिक्स हैं वो स्टैटिस्टिकल डाटा को स्टडी करते हैं और वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि ये ट्रेंड चल रहा है और ये इकॉनमी में प्रॉब्लम है, इसके अकॉर्डिंग हमको इकॉनमी में पॉलिसीज़ बनानी चाहिए. सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. सो दिस चैप्टर इज ओवर नाउ. I will meet you in the next class with a new chapter. Till then, goodbye and take care.